See question number 4, right? Question number 8.1, question number 4. Okay, question number 4 क्या है? Find the area of the region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. So see, this is, अगर ऐसा होता है तो this is ellipse. Okay, ellipse का equation होता है x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ठीक है? Now in this see the 3 yeah, so a is equal to 4 and b is equal to 3. ठीक है? जब ऐसा होता है तो see, if you directly put y is equal to 0, you will find that x square is equal to a square and therefore x equal to plus minus a. Okay, so if you try to make this graph, ऐसा आएगा ये कि plus minus a पे x coordinate आते हैं और ये जो ऊपर है ये plus minus b आते हैं. That means this is plus 4 comma 0, this is minus 4 comma 0, this is 0 comma plus 3 and this is 0 comma minus 3. ठीक है, समझ में आ गई है? इसके बीच में ellipse बनाना है. This is your ellipse. Okay everyone, this is how an ellipse looks. Okay, hello sir, what are we doing? We are doing exercise 8.1, question number 4. Okay, okay, do you teach anything, like any concept? No. Okay, cool, thanks. So this is the ellipse. Okay, and video on Sahaj and Rupak. Okay, so it's not letting me switch on my video. Okay. Okay, so this is so you know yeah, this is ellipse. Now how to find area of this ellipse? You will find area of this ellipse by saying that by integration I'll find this area, first quadrant area, and then because this is symmetric, I'll multiply this by 4. Okay, so area of ellipse is equal to 4 times this area. Okay, this area, and this area is actually how much equal to, this area is equal to c. इसमें तुमको पहले y लिखना है. What is y? y कैसे लिखेंगे? तो y को अलग करो, आइसोलेट करो. y को आइसोलेट कैसे करेंगे? देखो, y square by 9 is equal to 1 minus x square by 16. ठीक है, ठीक. इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो आएगा 16 minus x square by 16 is y square by 9. तो y square कितना आएगा? 9 by 16 times 16 minus x square, right? फिर y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 3 by 4. ठीक है, 3 by 4 और रूट ऑफ 16 minus x square. ये समझ में आया कि नहीं सबको? Yeah, understood. What? This, yeah, understood. Yeah, I have one question, not about this, like in general. So when we find the area, when we do definite integration from 0 to plus 4 of this y, we always get the positive. मतलब only the area in the first quadrant. हाँ, देखो इसमें ऐसा भी था कि एक्चुअली तुमको एक डाउट आना चाहिए कि सर ये तो प्लस माइनस होगा ना, मतलब अगर y स्क्वायर इक्वल टू दिस है तो y इक्वल टू प्लस माइनस होना चाहिए ना ये. Yeah, technically. तो प्लस माइनस मतलब क्या है? जब y तुम प्लस लोगे, जब y इज इक्वल टू प्लस ऑफ दिस क्वांटिटी, राइट, तो ये वाला कर्व है, वो ये वाला, तो वो ये वाला कर्व है, दिस कर्व है. ओके, और जब तुम y को माइनस लोगे कि y इज माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, तो ये वाला कर्व है. अंडरस्टूड? तो तुमको समझ में आ रहा है क्यों इग्नोर करना है? Okay. One more doubt. We can also do it as 2 times the area of definite y minus 4 to plus 4, right? हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा भी कर सकते हैं. बिल्कुल सही, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. दिस इज सो आइदर 4 times दिस, ये एरिया है, राइट, या फिर 2 times क्या कर सकते हैं? इंटीग्रल फ्रॉम -4 to 4. Is it one of the? Isn't there a property for -a to a for positive and I mean for odd and even functions? हाँ, तो ये एक इवन फंक्शन है ना. हाँ, इवन फंक्शन होगा. तो या तो तुम एरिया से रियलाइज कर लो कि ये और ये बराबर है, या तुमने एरिया से रियलाइज कर लिया ना कि ये 2 times c भी है. हाँ, या फिर तुम ऐसे बोलो कि बिकॉज दिस वाज इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन का था ना कि -a to a fx dx is just 2 times 0 to a fx dx. Oh, that was the thing. For one of them it was 0, right? For odd functions it's 0. नहीं, आंसर 0 है ऑड के लिए.
हाँ, आंसर 0 and odd के लिए. For even it's equal and for odd it is 0. For odd it is -a to a का इंटीग्रेशन 0 है. Yes. How do you know if it's even or odd? I forgot. How do you know it's even or odd? एक तो प्रॉपर्टी में तुमको अगर ऐसे प्रॉपर्टी में बताऊंगा तो तुमको ऐसे समझ में आएगा कि f of x is equal to f of minus x. ठीक है. हाँ, okay, that's good enough. That's how you're supposed to do it. No? या फिर तुम ऐसे समझो कि जब भी x की पावर इवन वाले फंक्शंस हैं तो वो इवन फंक्शन होंगे क्योंकि Okay. whether you replace x by minus x और फंक्शन चेंज नहीं होता है Yeah. तो वो इवन फंक्शन होते हैं. Okay, and odd are the ones which may f of x is equal to f of minus x is equal to minus fx. हाँ. Cos x is even and sin x is odd. हाँ. Okay, cool. How about tan x? Tan x is also even, right? Yeah. Tan of minus x is tan x only. नहीं. I think. I don't know. I'm not sure. Tan of minus x is minus tan x. Tan x क्या होता है? How so it's even? X That's का- what I said. Tan of minus x is minus tan x. तो ये इवन नहीं हुआ, ये ऑड हुआ ना. Achha, sorry, yeah, odd. It's like sin x. Sin x is also odd. Yeah. tan x is just like sin x. ठीक है. तो ये समझ में आ गया सबको. Yeah. अब देखो इसमें प्रॉब्लम है, इसका जो इंटीग्रल है ना वो छोटा नहीं है. ये देखो अगर तुम इसमें y लिखोगे और इसको लिखोगे 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 4 और फिर 3/4 ये लिखोगे ना 3/4 दिस, राइट. That special Sort of- property is there, no? हाँ, a square minus x square वाला है. तो ये 3/4 बाहर जाएगा तो ये बनेगा 3 टाइम्स 0 to 4 16 minus x square. अब ये ना ये कौन सा इंटीग्रल है? ये a square minus x square का रूट वाला इंटीग्रल है. ये लंबा होता है ना. Yeah. There's log also. हाँ, इसमें log भी आता है. इसमें 1 एज अ सेकंड फंक्शन लेके वो करता है, फिर यहाँ पे x/2 आता है, फिर यहाँ पे प्लस हाँ. a²/2 कुछ लंबा सा आता है. ठीक है. तो इसीलिए एलिप्स का क्वेश्चन लंबा होता है. एलिप्स का अगर आ गया तो थोड़ा सा लंबा होगा. ठीक है. But if it's in log, then how do we do definite integration like a minus b for उससे log कुछ 1? चलो इसको कर लेते हैं. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ, पहले तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square का इंटीग्रेशन होता है कितना है? One second, I don't have my answer sheet here. I don't have my... बोलो, देख के ही बोलो, पर बोलो. Everyone look at in the previous chapter. Sir, it's x/2 root of a square minus x square plus a square by 2 log. The log. Sir, I guess it's sine. log देख के बताओ ना. Sir, it's sine only. साइन है. ठीक है. X साइन by इनवर्स. Sine inverse. x by Not sine. ठीक है. साइन इनवर्स x by है. तो इसके लिए इसका आंसर होगा 3 टाइम्स, सॉरी ये लिमिट बन जाएगा ना ये तो 0 to 4 x/2 अंडर रूट ऑफ 16 minus x square, right? a square minus square plus a square by 2 यानी कि 16/2 which is 8, right? है ना. sin inverse of x/4 सही है, बिकॉज a4 है ना इसमें. ठीक है. हेलो, अरे क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? Understood till here. ठीक. अब इसमें पहले 4 डालूंगा. इसमें तो वैसे either way इसमें तो log है भी नहीं. It's only the x square minus a square 1 by 4 डालूंगा तो 4/2 ये आएगा. यहाँ पे 4 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, डालने की जरूरत नहीं है. प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 डालूंगा, साइन इनवर्स 1 आएगा, राइट? साइन इनवर्स 1. ठीक है. माइनस, अब अगर इसमें 0 डालोगे तो ये फिर से 0 हो गया, और इसमें 0 डालोगे तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स 0 is 0. तो 4 0 डाल के कुछ मिलेगा नहीं. तो देखो 8 साइन इनवर्स 1 कितना होता है? pi by 2. तो 8 pi/2 कितना हुआ? 4 pi हुआ ना. हाँ. और फाइनली 3 से मल्टीप्लाई होगी कितना होगा? 12 pi. ठीक है. So this one turned out to be short only. I'm talking about the ones like root, integral root x square plus a square, or the
1 by x square minus a square or 1 by x square minus 1 by root x square minus a square. All of तुमको these. यहाँ पे log चाहिए बोलो ना, क्या यहाँ पे तुमको log चाहिए ना? यहाँ पे log क्यों चाहिए? इस वाले में log नहीं, नहीं है. अरे तुमको चाहिए इस ऐसे क्वेश्चन हाँ हाँ जिसमें log मतलब हो. a special हाँ, integral ठीक. which has log. हाँ ठीक है, रुको पहले इसको देखो, इसको सुनो. एलिप्स में एक चीज ध्यान रखना, एलिप्स में ये लेंथ होती है a, ठीक है, ये लेंथ होती है b. एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, हमेशा ये आएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एलिप्स के एरिया का पाई ए बी, ठीक है. इसीलिए अगर सर्कल होता है ना, सर्कल, तो सर्कल ऐसा एलिप्स है जिसका ए और बी इक्वल है, तो तुमको दिखेगा कि उसका सर्कल का एरिया होता है पाई ए इंटू ए, विच इज पाई ए स्क्वायर. तो ऐसे याद रखना कि एलिप्स का जो एरिया होता है, एलिप्स का एरिया पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है. तो तुम्हारा जो आंसर एलिप्स का वो आना भी चाहिए था पाई इंटू 4, समझ में आया ना, पाई इंटू ये वैल्यू कितनी है 4 और ये वैल्यू कितनी है 3, तो इसका आंसर होना भी चाहिए था पाई इंटू 4 इंटू 3 विच इज 12 पाई. ओके, तो ये डायरेक्ट चेकिंग है कि 12 पाई आंसर आना चाहिए. यू कैन चेक योर आंसर, ओके, लाइक दिस. फाइन एवरीवन, ठीक है. How many marks do these questions come from? पार्डन, How many marks do these questions come from? मार्क्स पूछा क्या तुमने? मार्क्स, Yeah, marks. आई थिंक इट विल कम फॉर अ 4 मार्कर. Okay. पेपर 80 का है कि 100 का है? Yes, Sorry. it's only a 2 hour 40. paper finally. So 40. नो बट Won't be more than 2 4 markers. क्वेश्चन पेपर पूछ रहा हूँ पूरा कितने का. इट्स अ 3 hour paper, right? हाँ, so it's 40 marks. How can a 3 hour paper be 40 marks? It's 2 Oh, hours. it's It's 3 It's hours. 2 hours. I didn't say 3. I meant 2. Sorry. It's 2 hours to 2 40 marks. See, I'll tell you, in a 100 marks paper, it comes for 4 marks. It will cover 4 marks only, but there'll only be 2 4 markers. Okay. I'll have to see the paper to answer your question. Okay. I Then think we- they've released the sample paper. ठीक है. तो अच्छा, दूसरा है कि एक बात बताओ, सक्षम वो जो उस फॉर्मूला शीट में जाओ. सक्षम इधर नहीं है क्या? उस फॉर्मूला शीट में शायद हाइपरबोला का होगा. किस में आता है, किस फॉर्मूले में आता है ये लॉग, किस में आता है ये बताओ. I'll tell you in root x square plus a square. 1 by इसके फॉर्मूले में आता हाँ, इसके फॉर्मूले में आता है. फिर 1 by x square minus a square के फॉर्मूला में आता है. है. अच्छा, इसका वो बोलो, पूरा बोलो, उसका क्या आता है? What is the integration of this? X by 2 root a square minus x square. Oh, sorry. This is the other one. It's log. Sorry, this is a different one. I was saying the wrong. It's log. Yes, it is log x plus root x square plus a square. बस इतना है. Oh, yeah, but this is 1 by root x square plus a square का formula. Not. Yeah, अरे I यार, can't- the correct formula is. Oh wait, I can't even find it. Yeah, it's x by 2. इसका फॉर्मूला बोल रहा हूँ. This is the correct one. This is the correct one for sure. X by 2. इसमें ऐड करूँ कि नया लिखूं? x/2 लिखूं? Man, this is actually इसमें भी लिख सकते हो. बोलो. X by 2 root x square plus a square plus a square by 2 and the log is the same as the one on top. और इसका लेफ्ट साइड क्या है? ये integral x square plus a square. Yes. ठीक है. तो ये सही फॉर्मूला है. Yeah, I think it's correct. सुनो, अब एक पैराबोला, एक हाइपरबोला था, लिखो हाइपरबोला. ठीक है. हाइपरबोला कैसा होता है? इट इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लो. दिस इज ये हाइपरबोला है ना कि नहीं है? y स्क्वायर इज इक्वल, हाँ हाइपरबोला. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. डेस्मोस minus square is equal to 16. हाँ, ये देखो, ये हाइपरबोला है. I have seen, and इसका जो ग्राफ है वो ऐसा दिखता है. This hyperbola looks like this.
x axis y axis this hyperbola will look like this, ऐसा ओके ऐसा दिखता है हाइपरबोला. दिस इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 16 ऐसा दिखेगा. ठीक है ऐसा है. अब मैं अगर तुमसे एरिया पूछूं इसमें ये देखो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा बताओ बच्चों, ये पॉइंट कितना होगा? Four. पूरा बोलो. 0,4. Yeah. ठीक है. वैसे अगर मैं इसमें x को 2 डालूं या 2 डालूं या सपोज 4 डालता हूं, 4 नहीं हाँ 4 डालता हूं, सपोज 4 डालता हूं x को. ठीक है. इफ यू पुट x इक्वल टू 4 सो ये आ जाएगा 4 4 is 16, 16 plus 16 32, y square is equal to 32. So y is equal to root 32 and root 32 कितना होता है 16 2s are 4 root 2 आएगा राइट. So at x equal to 4 the y value is 4 root 2. So this is 4,4 root 2. ठीक है. ठीक है. Now if I ask you this area, suppose if I ask you this area, ठीक है this area covered, तो कैसे निकालेंगे? अपन को निकालना पड़ेगा we'll have to root y dx from x equal to 0 to x equal to 4, right? Yes or no? Yeah. Yes. तो y की वैल्यू कितनी होगी इसमें? y की वैल्यू होगी 16 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होगा ना y. Yeah. तो ये which is 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट इंटीग्रल. तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो आएगा x by 2 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस x स्क्वायर राइट प्लस a स्क्वायर by 2 मतलब 16 by 2 which is 8 log of x plus root 16 plus x स्क्वायर, यही आएगा राइट. इंटीग्रेशन आ गया. अब इसका कहां से कहां तक लिमिट? 0 से 4 तक लिमिट. ठीक है. अब देखो 4 डालेंगे, पहले 4 डालेंगे तो आएगा 4 by 2 which is 2 और 16 plus 4 is root 20 राइट. ठीक है ना? समझ में आया? Yeah, sir. 4 डालेंगे, 4 डाला ना 4 नहीं 4 नो ये गलत है, 4 जो 16 होता है राइट 32 root 32 है. It's 4 root 2. हाँ this is 4 root 2 itself right. Yeah. प्लस 8 log ये है 4 root 2 और ये है 4 so 4 plus 4 root 2 right. 4 into 1 plus root 2. Yeah. ठीक. और माइनस 0 डालेंगे तो ये भी 0 है राइट. And that'll be 8 log 16. 8 log 4. 8 log 4 हो जाएगा ना ये. Get it everyone? अब देखो ये तो बन गया 8 root 2 और ये क्या बनेगा 8 कॉमन लोगे तो आएगा log of 4 plus 4 root 2 minus log of 4. अब log of a minus log of b क्या होता है? log a by b तो आएगा 8 root 2 plus 8 times log of 4 plus 4 root 2 by 4. ठीक है. which is क्या बनेगा? सिर्फ ये बनेगा 8 log 1 plus root 2. ठीक है. और ये एक 8 और कॉमन है तो 8 root 2 कॉमन लेके ऐसे 8 कॉमन लेके ऐसे लिख दो 8 times root 2 plus log 1 plus root 2. Okay. Yeah. बस. That's actually pretty simple. It wasn't too bad. But that's only because of 0. You always give it with 0. ठीक है बच्चों. ये बना लेना हाइपरबोला ऐसा है. ठीक है. ये दूसरा है इसके बाद मेरे को और करना था एक 10th क्वेश्चन. ठीक है. तो 10th क्वेश्चन लेट्स सी. 10th क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to 4y y is equal to x square by 4. ऐसा दिखेगा ये. ठीक है. अगर बनाना नहीं आता तो बनाना सीख लो. ठीक है. y is equal to x square by 4. अभी तक तुमको आ जाना चाहिए कि कैसे प्लॉट करना है y is equal to x square by 4. I'm doing the 10th question. X square by 4 and the line x is equal to 4y minus 2. If you just want to plot the line simply एक बार x को 0 डालो, y की वैल्यू आएगी 0 डालेगा तो आएगी हाफ. ठीक है. तो 0, हाफ पे होगा और अगर y को 0 डाला
तो x की वैल्यू आएगी -2, तो मतलब यहाँ पे। तो ऐसी एक लाइन है, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एंड द ओके ओके ओके। तो मतलब ये पैराबोला आगे भी जाके कट करेगा ना इस लाइन को, ऐसा पैराबोला आगे भी कट करेगा, राइट। तो तुमको लाइन और कर्व का एरिया निकालना है, मतलब कौन सा एरिया, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये दो पॉइंट निकालेंगे। इफ यू वांट टू फाइंड दिस पॉइंट सिंपली पुट वन इनटू द अदर। सो सपोज आई पुट, यहाँ से उठाया y is x square by 4, राइट, उसको उठा के इसमें डाल दिया, तो आएगा x इक्वल टू 4 टाइम्स x square by 4 minus 2, ठीक है। ये 4 गया, क्या आएगा, x square minus x minus 2 is equal to 0, ठीक। तो सॉल्व करेंगे, आएगा x square, मतलब बेसिकली दिस इज x इक्वल टू -b -1, तो 1 प्लस माइनस b स्क्वायर विच इज 1 minus 4 2 plus 8 divided by 2, सही है ना। यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। तो आएगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √9 होता है 3/2, तो एक हो गया 1 minus 3/2, एक हो गया 1 plus 3/2। 1 minus 3/2 होता है 1 minus 2/2 -1, और एक होता है -2 and 4. नहीं -1 and 2, ओके। Oh, sorry, -1. एक x वैल्यू -1 है और एक x वैल्यू 2 है। अगर एक x वैल्यू -1 है मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट इसका है 2, तो ऑफ कोर्स अभी अगर ये -1 है तो y इज इक्वल टू किसी में भी डाल दो -1, ठीक है, x की वैल्यू -1, तो y की Why do you वैल्यू, need to, by the way, why do you need to find the y coordinates? oh actually you don't need to find the y coordinate, but it is मेरी आदत है बस निकाल देता हूँ, पर नहीं निकालने की जरूरत है, ठीक है। Marks, the teacher won't cut marks if you don't find the y coordinate or something. yeah, it won't, he won't, she won't, they won't. Anyway, it takes 2 seconds to find the y. Yes, 2 2 2 2 2 4 4 1, ठीक है, 2,1, ठीक है, फाइन। तो 2,1 अभी क्या करना है अपने को, इसको इंटीग्रल क्या करना है बताओ। लाइन वाइन ऊपर कौन सा लाइन है, राइट, नीचे क्या है, Parabola. So you find the area of the line by area of the लाइन parabola. माइनस पैराबोला, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 करना है, राइट। समझ में आया कि नहीं है। Yeah. अब लाइन का y लिखना है, पैराबोला का y लिखना है और इंटीग्रेट करना है। लाइन का y कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। लाइन का y कितना है, लाइन का y है x + 2/4। आया समझ में कि नहीं, ये y है लाइन का। किसको नहीं समझ में आया। तो लाइन का y इज x + 2/4 और पैराबोला का y कितना है, x²/4। बस इसको इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम -1 to 2, ठीक है। एवरीवन ओके, कुछ डाउट है इसमें, नहीं, ठीक है, ठीक है, इसको अपने आप करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Is this question a 4 marker? ये 4 मार्कर ही आएगा, हाँ। It's pretty simple, that's what I'm asking, right? देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जब 100 का पेपर होता है तब 4 मार्क का आता है, तो मुझे और पता नहीं, मैं सैंपल पर देख के फिर बताऊंगा, ठीक है। और क्योंकि उस पेपर में 6 मार्कर भी आते थे, इसलिए। सो अब डू तो यू हैव 6 marker नहीं आएंगे, but this question is pretty straightforward. ठीक है, तब फिर ये 4 मार्कर का भी नहीं पूछेंगे शायद। Shall might be only a 3 marker. It's pretty. ओके, अब एक चीज सुनो, ये समझ, इतना तो हो गया ना, इतना इज डन, राइट। Okay, the next thing is how to find the area of, so कैसे निकालते हैं, देखो जब अगर क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेटेड लाइंस, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो, फॉर एग्जांपल see the question number 2, okay, see the question number 2, 8.2, okay, 8.2 question number 2, 8.2 question number 2 क्या है, find the region bounded by the curves x - 1 the whole square plus y square is equal to 1 and x square plus y square is equal to 1। देखो ऑफ कोर्स ये वाला तो एक सर्कल है, दिख रहा है 1 यूनिट रेडियस का, सेंटर 0,0, राइट है ना। और इसका क्या होता है, इसके बारे में क्या है कि whenever you shift, जब भी x को x - h लिखो और y को y - k लिखो किसी भी कर्व में,
you are shifting the origin by h and k. That means इस कर्व से ये कर्व कैसे मिला, x को x minus 1 करके, राइट? x को x minus 1 किया ना, तो पहले सेंटर क्या था, 0 था x और y भी 0 था. अभी सेंटर कितना हो जाएगा, x सेंटर 1 हो जाएगा और y सेंटर भी 0 रहेगा. मतलब अब सेंटर कितना है, 1,0 इसका. ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. रेडियस Yeah, this is a simple circle formula. Yeah. ठीक है, ये ठीक है, ऐसा सर्कल बनेगा. अब वो बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, मतलब ये वाला एरिया वो पूछ रहा है कौन सा, is asking the total green area. So you can find the total green area by simply saying that it is twice the red area. Okay, if it is twice the red area, you can find the red area by saying, see, you have to find this point. Okay, to find this point you just simply solve both of these. तो यहाँ से y square उठाओ और इसमें डाल दो, वहां से y square उठाओगे तो आएगा x minus 1 the whole square minus 1, sorry, यहाँ से y square उठाओगे तो आएगा 1 minus x minus 1 the whole square, और इधर से उठाओगे y square तो आएगा 1 minus x square. ठीक है, दोनों जगह का y square उठा लिया. या फिर तुम ऐसे भी, ठीक है y square उठा लिया. अब क्या करो, ये 1 1 काट दो और इसको लिखो x square is equal to x minus 1 the whole square. अब ये किस x वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होता है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये x equal to half पे सेटिस्फाई होता है. ठीक है, तुम देखो, दिख भी रहा होगा कि half square is minus half square. ठीक है, The second circle will be intersecting at the center of the first circle, right? and vice versa. Yeah, so we take the definite integration between the centers, right? I'm not getting how we find the answer for this. Like, what's the? देखो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है. ठीक है, सॉरी, मतलब what minus what is the answer? I don't get that. बता रहा हूँ. देखो सुनो, तुमको ये समझ में आ रहा है, ये एरिया निकालना है. Yeah. तो इस एक्चुअली करना ये है कि इसमें ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 0 है, Yeah. ये वाला पॉइंट x इक्वल टू हाफ है, राइट, और ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 है. Yeah. समझ में आया? Yeah. You have to do what? You have to do integrate this red curve from 0 to half. Oh, and the other curve form. ठीक है, Half और to प्लस इंटीग्रेट ब्लू कर्व फ्रॉम हाफ टू 1. ठीक है, Yeah, makes sense. ठीक है. तो जो या सो देयरफॉर द रेड कर्व का इक्वेशन लिखेंगे. रेड कर्व जो है वो ये वाला सर्कल है ना, ये वाला है ना रेड, राइट. उसका y कितना है, रेड कर्व का y कितना है, रेड कर्व का y है 1 minus x minus 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 minus x minus 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है. ये है y रेड का, राइट. किसको नहीं समझ में आया, बोलो, पूछो जल्दी, पूछो. और जो ब्लू कर्व है, ब्लू कर्व का y है 1 minus x स्क्वायर का रूट, तो ब्लू है 1 minus x स्क्वायर का सिंपल रूट, और इसको इंटीग्रेट करना है. वी हैव टू इंटीग्रेट द रेड वन फ्रॉम 0 टू हाफ, और इसको इंटीग्रेट करना है हाफ टू 1. ठीक है, Yes, sir. ओके. सो और दोनों को ऐड कर देना है, और फिर इसके आंसर को, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, क्योंकि तुमने अभी तो ये एरिया निकाला है, राइट. तुमको इसको डबल करना पड़ेगा नीचे वाले को निकालने के लिए. ओके, एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. नो, ठीक है. चलो इसको लिख लो. Can you use the formula in this one? Hmm? Can you use the formula in this one, that 1 minus a square minus x square formula? I don't understand which. For the integration of the red part, they use root a अच्छा, square रेड minus वाले x को square formula. रेड वाले को I think you should do. I think But what you ax should do is, dx will be same, right? So we should use. नहीं, listen. अगर ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो आई थिंक व्हाट शुड डू, ऐसे करना चाहिए. देखो तुमको ये 0 से हाफ है ना, Yeah. तो इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड से x minus 1 is t. ओके, सो dx is dt. तो मैंने इसको लिख देता 1 minus t स्क्वायर और dt, और फिर लिमिट भी चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, x 0 है तो t minus 1 है.
राइट, Yeah. है ना? और x हाफ है, अगर x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट चेंज करना, x अगर हाफ है तो t माइनस हाफ है, ठीक है? नाउ आई विल इंटीग्रेट दिस. नेक्स्ट थिंग देखो होता है 8 पॉइंट फाइंड द एरिया, एक और फोर्थ वाला, ठीक है? फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है. कितना टाइम बचा है इसमें? Rejoin, okay, rejoin this, leave and rejoin, okay.